Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to lecture number 8 of Software Engineering 1, CSC 291. In today's lecture, we will be continuing requirement engineering. It's been a very long topic and we have been covering this requirement engineering for past 3-4 lectures. And today, inshallah, or maybe in the next lecture, we will be finishing this topic. In the last lecture, we started off with flow-based modeling. We'll just do a quick recap of what we covered in the last lecture. The first topic in flow-based modeling was DFDs, data flow diagrams. Data flow diagrams के अंदर हमने example देखी थी जो कि मैंने आपको बताया था प्रेसमैन की बुक के अंदर there is an example जिसमें safe home security solution की DFDs उसने बनाई हुई and we did that example and we also discussed a human resource management solution जिसकी हमने DFDs बनाई थी. So what do we do in a DFD? The sole purpose of DFDs is to identify the flow of data in and out of our software. So what we do is at level 0 of the DFD we make a big bubble and say, for example, if we are making human resource management solution, then at level 0 we will have a huge circle which would say this is our solution, and then we try to identify the inputs and the outputs from our system. So for example, in case of human resource management solution, we discussed that there are two kinds of inputs or two kinds of data coming into our system. Number one, there was data from the HR manager who basically logs into the system and view the attendance of all the employees. And number two was the input from the biometric device which records the attendance of each employee when he or she comes in and when they leave. Similarly, we also discussed that there might be a third input which can be from another software. For example, let's say there is a finance module which has the salaries of all the employees and it has the rules that if an employee is late, then the salary is deducted by such and such amount. So if there is some other data which is coming from another software, so that is another kind of input. So in that case, we have three inputs, and the outputs we discussed that there can be two kinds of outputs. Number one, the output is basically the output on the screen that the manager actually requests. For example, he wants to see how many employees are present today and how many came in late today, or he wants to generate a report monthly, quarterly, so he can do so, and that's one kind of output. Then another kind of output is basically when the employees they log in or when they check in, they know the timings that at what time they actually entered the building. So basically at level 0 we try to identify the inputs and the outputs. And what is the difference between level 0 and level 1? The most important thing that level 0 and level 1, they should conform to each other. So basically the inputs and the outputs from the system, they won't change. What we will do in level 1 is we decompose our software into smaller bubbles. For example, when I say human resource management solution, we do not know that how many processes are actually in there, okay? And it is not clear that how our data will transition through the system. So what we need to do is that we need to decompose our main software into smaller bubbles. So for example, in case of human resource management solution, the smaller processes can be that, for example, number one, that the process to handle the input data. Okay, so what that process would do, it would basically, and then there can be further processes. One process which will basically authenticate the login of the HR manager. Then another process that would basically be generating reports, collecting data from the database and generating reports in a proper format. And maybe a third kind of third process would be which handles the input from the biometric device, and then another process can be which basically handles the display information or the output information. So one thing that we need to keep in mind, or we need to be very clear about, that the inputs and the outputs in all the level of DFDs, they would stay the same. It's basically we'll keep on decomposing our processes into level 1, level 2, and maybe if need we can go to level 3, level 4. So basically we decompose the processes unless and until we realize that we cannot further decompose it. Okay. The next kind of diagrams that we covered in flow-based modeling was control flow diagrams. And we saw that in control flow diagrams, we basically try to map the flow of control information from our software. For example, our software can be divided into different states. For example, in case of safe home solution, we saw that the safe home product, it can be idle, it can be active, or it can be in surveillance mode. And there were various triggers which basically changes the state of our software. So control flow diagrams, they are basically used to map the flow of control information within the software. Finally, in the flow-based modeling, we covered processing narratives.
those processing narratives, they are basically written descriptions of the processes. So for example, if I say the same, if we discuss the human resource management solution, then a processing narrative for that could be that the HR manager, he logs in and he can check the daily attendance of all the employees. He can also generate reports, which includes how many employees were absent today, how many were late today, and he can also generate monthly or quarterly reports. So this is a processing narrative of what we have just made in DFD and in a CFD. So processing narratives are just written descriptions of what our software would do. The second very interesting thing that we covered in the last lecture was class-based modeling. And this is very relevant when our design is object-oriented design, or when we want to make a solution which consists of various classes. Now the key question is that how we identify the classes. This is a very tricky question, and we discussed one method, that what we do is that any written description that we have, it can be use case text or it can be the processing narratives that we just discussed in flow-based modeling. And what we do is we try to go through those written descriptions and we try to identify, we do a grammatical parse. So what do we mean by grammatical parse? In the grammatical parse, we try to identify all the nouns. So, but all those nouns, they cannot be classes. So there has to be a method where we filter down and we identify that these are the classes and these are not the classes. So we saw that there are certain criterion, and all the nouns, they have to satisfy all those criteria. If a noun does not satisfy any single of those criterion, then we say that this is not a class. And finally, then we saw that how we identify the attributes and the operations of a class. And so the nouns that were the classes, they are very simple. Then comes the nouns which were neither classes, but we identified them as nouns. So those nouns, they become attributes of the classes to whom they are most closely related to. Okay? यानी कि जो नाउन तो हमने क्लासेस के तौर पे फिल्टर कर लिया, दैट्स इट, लेकिन जो नाउन बच गए उनको हम उन्हीं क्लासेस का, जो कि क्लासेस बन चुकी हैं, जिनको हम वो क्राइटेरिया पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं, वी ट्राई टू मेक देम एट्रीब्यूट्स ऑफ दोज क्लासेस. एंड हाउ वी डू वी आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस ऑफ अ क्लास? We again do a grammatical parse and we try to identify all the verbs in the written description, and all those verbs, then they become the operations of the classes. And the final thing that we covered in class-based modeling, it was CRC modeling. Now what CRC stand for? It basically class responsibility collaborations, I think. And CRC modeling, what we try to do is basically we try to make those small CRC cards, and they are literally on cards, and what we do, we try to write the responsibilities of each class. Okay, and then we say that, okay, which responsibilities of a certain class are shared by another class. For example, if a class has to authenticate, then it needs services of another class, then we will say that for this responsibility we needs collaboration with another class. So CRC cards basically helps in making the class model. So basically it helps in identifying that how different classes would be linked together. So that was a bit summary of what we covered in the last lecture. And as I said, or I have been saying in this requirement engineering series of lectures, that we will be covering the UML notations of each of these diagrams, for example use cases, DFDs and class-based modeling, and we will have separate lectures on each one of these topics once we finish the requirement engineering lectures. So if you have any questions regarding the notation, that how we make the class modeling, and what does the actually structure look like, or what does the structure of DFDs look like, we'll do more examples on that. So hopefully those questions would be answered in those lectures. Okay, now let's see what we have in store today. As you guys know that we have been covering the elaboration phase for past 2 lectures now. It is one of the most detailed phases because we do all the modeling in this phase. If you guys remember, the first phase was inception, then we had elicitation, and the third one is elaboration. In elaboration, we started off with scenario-based modeling, where we discussed the use cases, and then we had then we covered the flow-based modeling and the class-based modeling. In today's lecture, we will cover the behavioral modeling, which will be the final kind of modeling that we do in elaboration phase. And if time permits, in today's lecture, then we will move on to negotiation
specification, validation, and how do we actually manage requirements once we have written set of requirements. This is very interesting. So we will basically try to cover these topics in today's looking at behavioral modeling. So what does the word behavioral modeling means to you? If you look at the word meaning or the literal meaning of the word behavioral modeling, it means that basically you're trying to model the behavior or how your software would behave. You're trying to model that. Okay. Now there are different kinds of diagrams that we can make when we are trying to model the behavior of our system. Okay. And two of these diagrams that we will be covering today are, one is the state diagram and the other is the sequence diagram. Now, when we say that we are trying to model behavior of our system, what we are actually doing is that we try to model the behavior of our classes. Okay. For example, we have identified or we have partitioned our system into different classes. Then in the state diagrams, what we try to do is we try to model that how will this class behave when it receives certain kind of input. So basically we're trying to model or we're trying to identify different states within a class and how different events will basically when different events occur, how we will move through those different states within a class. And similarly in the sequence diagram, what we try to do is we try to model how the information flows in a sequence between different classes or between different objects. Okay, so before we move on to state diagrams and sequence diagrams, let's see how do we actually create a behavioral model. Okay. The first thing that we need to do is we need to identify the events which are found within use cases, okay, and which are implied by the attributes in the class diagrams. Okay. So for example, if there is an attribute in a class diagram which is, let's say, a Boolean variable, or which is basically when it's true it means another event, or when it's false it means another event, then this is an example of an event. Okay. And similarly what we do is we basically try to identify these events in the use case text, similar to the way we identify the classes and the noun and the operations of a class that we did a grammatical parse. Similarly, this is not actually a grammatical parse, but we go through those texts, use case texts in particular, because they are actually, why use case text? Because if you guys remember, use cases record interaction of the actor with the software. So we try to identify events going through the use case text. The second thing that we do is that we build a state diagram for each class. Okay. Now this is something that you need to be very clear about, that when we say state diagram, so each state diagram corresponds to a class. Okay. And we try to make it for the whole system overall, but it might not be possible to, for example, to make state diagrams for all the classes or for the whole system. But what we do is we basically try to model state diagrams for individual classes, and we try to identify within and what is it in a state diagram. It basically has the states object can go into. So basically कोई भी state diagram class की बनेगी, उसके अंदर जो states होंगी वो state होंगी जो object वो different states में जा सकता है. Okay. Okay जी. Now how do we identify events in the class? Number one thing, हमने कहा दो चीज़ें करते हैं. सबसे पहला हम काम करते हैं, we try to identify events, and the second thing is that we build a state diagram. Okay जी. Event की क्या definition है? जब भी कोई actor आपके system के साथ interact करता है तो an event is generated. ठीक है. और हमारी actor की क्या definition थी? An actor can be a person, another machine, or another software. ठीक है. कोई भी चीज जो हमारे सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, दैट इज एन एक्टर. ठीक है. और हमारा सिस्टम जब भी उसके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा तो दैट्स एन इवेंट. ठीक है. और एन इवेंट इज नॉट द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज, बट रेदर द फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सचेंज. यानी कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है. ठीक है. जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई है तो इसका मतलब एक इवेंट ऑकर हो गया. ओके. And some events have an explicit impact on the flow of control while others do not. ठीक है. जिस तरह कुछ events होते हैं वो directly उनका impact होता है और कुछ का नहीं होता. जिसकी example इस तरह है कि reading of a data item from the user versus comparing the data item to some possible values. ठीक है. For example, अगर user ने कोई input डाली है, let's say वो उसने अपना password डाला है. Now an event is generated which is generated by the user, और उसका कंट्रोल के ऊपर जो आपका फ्लो है, फ्लो आपके जो कंट्रोल फ्लो है ना, या आपकी जो स्टेट चेंज होंगी उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है. ठीक है. वेयर एज जो दूसरा काम है कि उस पासवर्ड को जब आपने कंपेयर करना है, ठीक है, नाउ दैट इज समथिंग पैसिव, लेकिन जो
जैसे उसने पासवर्ड डाला, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। तो इवेंट्स दोनों ही हैं, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट स्लाइटली डिफरेंट है, और वो हम स्टेट डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे हाउ इट इज़ डिफरेंट, ठीक है जी। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई इवेंट्स? जब भी कोई एक्टर हमारे सिस्टम के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा और ये हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, वी से दैट एन इवेंट हैज ऑकर्ड। ओके जी। नाउ हाउ डू वी एक्चुअली बिल्ड अ स्टेट डायग्राम? आपकी जो स्टेट डायग्राम होती है ना, उसके अंदर आपकी जो भी क्लास की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, ठीक है, दे आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय अ राउंडेड रेक्टेंगल। सॉरी, दिस इज नॉट अ गुड डायग्राम। राउंडेड रेक्टेंगल वुड लुक समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जिसके जो एजेस होंगे वो राउंडेड से होते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है जी। जो आपकी ट्रांजिशन होती है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल आपकी ये दो स्टेट्स हैं, अगर इनके दरमियान जो ट्रांजिशन होगी वो आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज लेट्स से स्टेट ए एंड दिस इज स्टेट बी, तो इनके दरमियान जो ट्रांजिशन है वो हमने किससे रिकॉर्ड की है? थ्रू दिस एरो। ओके जी। And this is the syntax. You do not need to worry about the syntax right now, because as I said, we have a separate lecture on the state diagrams and sequence diagrams in coming lectures. So, okay जी, now आपका जो object होता है, it can be in two possible states, ठीक है, active state and the passive state, ठीक है। The active state of an object, it indicates the current overall status of the object as it goes through information or processing, ठीक है। और जो आपकी पैसिव स्टेट होती है वो उसके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की जो करंट वैल्यू होती है, दैट इज बेसिकली अ पैसिव स्टेट, ठीक है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट स्टेट्स में ट्रेवल कर सकता है। फॉर एग्जांपल इट कैन आइदर बी इन ए और इट कैन बी इन बी, ठीक है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होगा हम उसे एक्टिव स्टेट कह देंगे। फॉर एग्जांपल यू आर इन ए, तो दिस इज द एक्टिव स्टेट, ठीक है। और ये अभी बाकी जितनी भी स्टेट्स होंगी आपके सिस्टम की, दोज वुड बी पैसिव स्टेट्स, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होती जाएगी, और फॉर एग्जांपल यू मूव फ्रॉम ए टू बी, तो बी आपकी एक्टिव स्टेट हो जाएगी और ए आपकी शायद पैसिव स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो विद इन अ स्टेट डायग्राम जब भी आपका फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर चलता है और ये डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं, तो वन ऑफ द स्टेट्स वुड बी एक्टिव, ठीक है, एंड द अदर्स माइट बी पैसिव। ओके जी। Now identify events. As I said, how do we identify events? We basically go through the use case text and then we try to identify the information exchange between the actor and the system. ठीक है, जिस तरह ये नीचे एक text दिया हुआ है, let's go through it and try to identify the events. ठीक है, the text says that the homeowner uses the keypad to key in a 4-digit password. ठीक है, the password is compared with the valid password stored in the system. If the password is incorrect, the control panel will beep once and reset itself for additional input. If the password is correct, the control panel awaits further action. अब अगर इसके अंदर हम events identify करने की कोशिश करें, so the first event is when the homeowner uses the keypad to key in a 4-digit password. यानी कि पहला event क्या है? जब आपका homeowner password enter कर रहा है, क्योंकि there is an actor which is trying to give some information to the system. ठीक है, तो this is the first event. The second event, which is जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट आपके इस कंट्रोल फ्लो इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जो पहला वाला होम ओनर वाला है, दैट इज दैट काइंड ऑफ एन इवेंट। जो दूसरा इवेंट है जब आप अपने उस पासवर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिस हमने ये सेफ होम वाले केस में डिस्कस किया था कि फॉर ईच होम देयर इज अ यूनिक पिन नंबर और पिन आईडी जो कि आपने सेव की होती है। फॉर एग्जांपल इट्स 1 2 3 4, तो जब यूजर ने जो डाली आप उसको इससे कंपेयर करेंगे जो स्टोर्ड है, ठीक है। नाउ दैट इज ऑल्सो एन इवेंट, वो भी आपके सिस्टम की स्टेट्स को चेंज करेगा, ठीक है, लेकिन ये सेकंड कैटेगरी ऑफ इवेंट जो हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है, जिसका शायद डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। इफ द पासवर्ड, और तीसरा इवेंट क्या है कि अगर तो आपका वो पासवर्ड गलत है, ठीक है, यानी कि इफ यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट पासवर्ड, तो आपका जो कंट्रोल पैनल है उससे एक बीप की आवाज आएगी, ठीक है, ताकि वो यूजर को पता लगे कि यू हैव टू एंटर द पासवर्ड अगेन, ठीक है। तो सो बेसिकली देयर आर 3 काइंड ऑफ इवेंट्स दैट आर ऑकरिंग इन दिस केस। नंबर 1, होमओनर ने पासवर्ड डाला। Number 2, आपने पासवर्ड को कंपेयर किया। If the password is correct, then it's fine. If the password is not correct, then there will be a beep from the control panel. Okay जी। अगर इसी की अब हम स्टेट डायग्राम देखें, तो इसकी स्टेट डायग्राम कैसे बनी है कि this is the first state, ये जो आपकी रीडिंग वाली स्टेट है, यानी कि हमने पहली बात तो ये कि this state diagram is of कौन सी क्लास की है? This is of the control panel class. ये हमारी क्लास है जो कि हमने अपने सोल्यूशन के अंदर इन द लास्ट लेक्चर वी आइडेंटिफाइड दिस एज वन ऑफ द क्लासेस, ठीक है।
तो कंट्रोल पैनल क्लास को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया और कितनी पॉसिबल स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली स्टेट हमारी कौन सी है, रीडिंग की स्टेट, ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इट्स ऑलवेज इन द पोलिंग स्टेट, यानी कि इट्स वेटिंग फॉर एन इनपुट फ्रॉम द एक्टर, सो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज इन अ रीडिंग स्टेट, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेट जिसको हम कह रहे हैं रीडिंग स्टेट, ठीक है। जब हमारी जो दूसरी स्टेज है वो दूसरी स्टेट क्या है, इट इज द कंपेयरिंग स्टेट, कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू कंपेयर जो पासवर्ड यूजर ने डाला है वो सही है या गलत है, ठीक है। तीसरी स्टेट हमारी क्या है, लॉक्ड। लॉक्ड इस सेंस में हम करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई some intruder comes into your house and he tries to enter the password और वो बार बार गलत पासवर्ड एंटर किए जा रहा है, तो obviously your system should lock down, ठीक है। तो तीसरी हमारी जो स्टेट है वो लॉक्ड की स्टेट है, और जो आपकी फोर्थ स्टेट है वो है सेलेक्टिंग की। These states are basically आपको कंट्रोल पैनल की फंक्शनैलिटी को जहन में रख के इन स्टेट्स को सोचना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इफ यू हैव अ कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल क्या क्या काम कर रहा है। पहला काम कंट्रोल पैनल कर रहा है कि इट्स एक्सेप्टिंग सम इनपुट फ्रॉम द होम ओनर। सेकेंड काम वो ये कर रहा है कि इट इज ट्राइंग टू कंपेयर द पासवर्ड दैट द यूजर हैज एंटर्ड। तीसरा काम वो ये कर रहा है कि इफ द पासवर्ड इज एंटर्ड इनकरेक्टली मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो सिस्टम को लॉक कर देता है। और चौथा काम वो ये कर रहा है कि इफ द पासवर्ड इज करेक्ट, तो इट बेसिकली डिस्प्लेस सम इंफॉर्मेशन जो किसमें वो यूजर को ऑप्शन देता है कि इफ यू वांट टू सेलेक्ट अनदर फंक्शन देन डू सो। सो बेसिकली दीज आर द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द कंट्रोल पैनल क्लास। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो इवेंट जनरेट हो रहे हैं वो कैसे हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो पहला इवेंट है जिसको हमने कहा था कि जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें से बाकी जितने भी इवेंट्स जो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान आपका ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन कर रहा है, जो सबसे पहला इम्पैक्ट है जो की हिट है, यानी कि जो एक्टर ने इवेंट जनरेट किया, ये आपका वो वाला इवेंट है जो कि जिसने आपके पूरे ऑब्जेक्ट की या जिसने आपने पूरे क्लास के अंदर बेसिकली एक तरह से हलचल मचा दी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला इवेंट ना होता तो शायद बाकी वाले इवेंट ना होते, ठीक है। यानी कि दिस इवेंट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द कंट्रोल फ्लो ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो इवेंट है की हिट, दिस इवेंट इज बेसिकली बाय द होम ओनर, ठीक है। यहाँ ये इवेंट एक एक्टर ने किया है जो कि हमारे केस में कौन है, एक होम ओनर है, ठीक है जी। वंस द की इज प्रेस्ड, जैसे ये की प्रेस हुई, ठीक है, इसने रीड किया एंड द नेक्स्ट थिंग यू डू, एक पासवर्ड एंटर हुआ है, ठीक है। नाउ दिस एंटर्ड पासवर्ड इज देन कंपेयर्ड। जब ये कंपेयरिंग स्टेट के अंदर है तो आपका जब जैसे यहाँ पे पासवर्ड एंटर हुआ तो द स्टेट इज चेंज नाउ, इट्स फ्रॉम रीडिंग स्टेट, इट्स बेसिकली इन कंपेयरिंग स्टेट नाउ, ठीक है। नाउ यू कैनॉट डू एनीथिंग विद द कंट्रोल पैनल बिकॉज इट्स बेसिकली वेटिंग फॉर द रिप्लाई कि आपको जो पासवर्ड सही एंटर हुआ था वो सही था या नहीं था, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स द एक्टिव स्टेट, ठीक है। जब तक यूजर ने पिन एंटर नहीं किया था तो दिस वाज द एक्टिव स्टेट, ठीक है। मे बी इन दिस केस दोज टू विल बी द एक्टिव स्टेट्स। जो आपका क्योंकि जो रीडिंग स्टेट है वो अब एक्टिव नहीं रही क्योंकि आपने वहां से पासवर्ड रीड करके कंपेयरिंग स्टेट के अंदर आ गए, ठीक है। एंड वंस द पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल, ये अब डिफरेंट एरोज जो हैं ये शो कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर सकती है, ठीक है। इफ द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये जो एरो जा रहा है, अगर आप इस एरो को देखेंगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इफ the password is incorrect and the number of tries is less than maximum tries। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सिस्टम के अंदर लिमिट रखी हुई है कि ये पासवर्ड आप उस वक्त 5 दफा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। 5 दफा आप गलत पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, ठीक है। 5 से कम जब तक आपने फॉर एग्जाम्पल पहली दफा गलत किया तो आपको सिस्टम दोबारा प्रॉम्प्ट करेगा कि जी दोबारा एंटर करें, ठीक है। जिस तरह पहली दफा फॉर एग्जाम्पल यू एंटर द पासवर्ड इनकरेक्टली, तो होगा क्या कि यहां से आप वापस रीडिंग स्टेट में आ गए, ठीक है। यानी कि फिर रीडिंग स्टेट आपकी एक्टिव स्टेट बन गई, ठीक है जी। नाउ अगर आप इसी तरह गलत पासवर्ड डाले जा रहे हैं, ठीक है, और आपने 5 दफा गलत पासवर्ड डाल दिया, तो व्हेन यू ट्राई टू एंटर द इनकरेक्ट पासवर्ड अगेन, यहां पे वो देख लेगा कि नंबर ऑफ ट्राइज इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ट्राइज। फॉर एग्जांपल छठी दफा जब आपने डाला तो जैसे ही आपकी वो मैक्सिमम ट्राइज से ज्यादा हो गया, 6 ग्रेटर देन 5 हो गया, तो वो आ गया कौन सी स्टेट के अंदर, लॉक्ड की स्टेट के अंदर आ गया, ठीक है। यानी कि अब उसने आपके कंट्रोल पैनल को लॉक कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसने लॉक कर दिया आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, घंटे के लिए, ताकि जब तक पुलिस आ जाए, व्हाटएवर यू नो, इफ यू हैव सम सेटिंग्स इन योर सिस्टम कि अगर लोग इनकरेक्ट पासवर्ड डालते रहें और ट्राइज मैक्सिमम ट्राइज अचीव हो जाएं, तो मे बी देयर इज एन अलार्म टू द पुलिस, यू नो, बेसिकली दे कम इन एंड दे चेक इफ यू नो समबडी इज इन द हाउस एंड ट्राइंग टू ब्रेक इन और व्हाटएवर, ठीक है जी। तो दिस कैन हैपन, और आफ्टर सर्टेन टाइमर, ये टाइमर लगाने की रीजन क्या है कि कुछ देर तक आपका सिस्टम इसी स्टेट के अंदर रहेगा, यानी कि आपके सिस्टम की जो एक्टिव स्टेट होगी वो यही होगी, ठीक है। और
आपका बाकी स्टेट्स पैसिव होगी, लेकिन हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। जिससे रीडिंग स्टेट को भी ये भी पता है कि अभी मैं रीड नहीं कर सकती, ठीक है। कंपेयरिंग स्टेट को ये पता है कि जो पासवर्ड एंटर हुआ था वो इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये टाइमर कंप्लीट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपने टाइम रखा हुआ है कि आधे घंटे तक मेरा सिस्टम अब लॉक्ड रहे, ठीक है, तो तब तक आपका अलार्म भी शायद बजता रहेगा और आपका कंट्रोल पैनल भी कोई इनपुट रिसीव नहीं करेगा। जब आपका ये जो टाइमर है वो फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो आप दोबारा यहाँ से कौन से स्टेट के अंदर आ जाएंगे, रीडिंग स्टेट के अंदर आ गए, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल आपका होम ओनर भी घर पहुँच जाता है, ठीक है, एंड देन ही एंटर्स द करेक्ट पासवर्ड। जब उसने पासवर्ड एंटर किया, पासवर्ड सही था, तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा, जो कि कौन सी स्टेट होगी, सिलेक्टिंग की स्टेट। अब ये सिलेक्टिंग की स्टेट क्या कर रही है, सिलेक्टिंग की स्टेट अलाउज द होम ओनर टू सेलेक्ट वन ऑफ द पॉसिबल फंक्शंस दैट द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स। जो कि सेफ होम की प्रोडक्ट है, वो क्या प्रोवाइड करती है कि आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज कर रहे हैं, या और यू आर चेंजिंग योर अलार्म, या आप कोई डिफरेंट तरह का व्यू देखना चाह रहे हैं, व्हाटएवर। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंट इवेंट्स। इसमें अगर आप देखें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि द की इवेंट जो है, यानी कि जो मेन इवेंट है जिसने ये सारे आपकी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपका ऑब्जेक्ट हैज बाउंस्ड अराउंड डिफरेंट स्टेट्स, उसमें जो मेन इवेंट है दैट इज जनरेटेड बाय एन एक्टर। जब उसने एक पिन नंबर एंटर किया, वंस ही हैज एंटर्ड दैट पिन नंबर, तो उसकी बेसिस के ऊपर दिस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और दिस इज द फ्लो ऑफ इवेंट्स और फ्लो आपकी डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, दैट इज एक्चुअली इट। Okay ji, so this is how we make state diagrams. Few things that you need to keep in mind, that a state diagram is always of a certain class. हमेशा हम एक क्लास की state diagram बनाते हैं, ठीक है जी। और उस whenever we make a state diagram, उसके अंदर हम हमारी कोई active states होती हैं, कुछ हमारी passive states होती हैं, ठीक है। जिस state के अंदर हम अभी होते हैं normally that is called an active state and the rest of the states they are called passive states, ठीक है जी। और जो states के दरमियान transition होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रीडिंग से जिस तरह कंपेयरिंग के दरमियान जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन क्या है, वो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस के अंदर वो क्या आती है, जिस तरह पासवर्ड एंटर, ठीक है, दिस इज अ ट्रांजिशन। जितने भी ये एरोज हैं इसके अंदर, दे आर बेसिकली ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। हम सारी पॉसिबल ट्रांजिशंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप अगर देखें कि कंपेयरिंग से देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। 3 तरह की पॉसिबल ट्रांजिशन है कंपेयरिंग से। एक तो कंपेयरिंग से ट्रांजिशन है कि पासवर्ड गलत हुआ तो दोबारा रीडिंग में चला गया। दूसरी ट्रांजिशन किसकी तरफ जा रही है, लॉक्ड की तरफ जा रही है, कि अगर आपने मैक्सिमम दफ़ा गलत पासवर्ड डाल दिया है, जो आपने 5 की लिमिट रखी हुई थी, तो वो लॉक कर देगा सिस्टम को। तीसरी ट्रांजिशन क्या है कि अगर आपने पासवर्ड सही एंटर किया है तो वो सेलेक्टिंग की स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली दैट्स हाउ यू रिकॉर्ड योर ट्रांजिशंस, ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ क्लास। ओके जी। The next thing that we cover in behavioral modeling is the sequence diagram. ठीक है जी। Again, this is a very brief summary. I just want to introduce you to sequence diagram. Sequence diagrams होती क्या है? सबसे पहले तो ये है कि हमने जो पिछले लेक्चर में we covered class modeling, ठीक है। जब हमने class modeling पढ़ी तो we identified different classes, ठीक है। In today's lecture we started off with behavioral modeling, और जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी क्लास किन किन स्टेट्स हम मॉडल करते हैं कि हमारी क्लास किन किन स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन कर सकती है, ओके। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू मॉडल जो हमारा एक इवेंट जनरेट होता है, ठीक है। जिस तरह हमारा पिछले स्टेट की केस में क्या था कि हमारा सिस्टम रेडी स्टेट के अंदर था और यूजर ने एक पिन एंटर किया, ठीक है। तो हम उसी स्टेट डायग्राम को वी कैन मॉडल दैट इन अ सीक्वेंस डायग्राम, और बाय डूइंग सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो दूसरी क्लासेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने इस हम सीक्वेंस डायग्राम को देखें, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल शो की हुई है, इसके अंदर देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जो डिफरेंट आपके ऊपर पर्पल कलर के अंदर ये जो 4 देख रहे हैं, जो कि मैं अभी आप इफ यू कैन सी इन द स्लाइड, इफ द वंस दैट आई हैव हाईलाइटेड, होम ओनर is one class that we identified in class modeling. Control panel is another class. System is another class. और the sensors they are another class. ये चारों classes हमने जब class modeling discuss की थी तो we identified those classes, we identified those nouns, और finally they satisfied all those criterions. जो हमारे वो 6 criteria थे उनको सबको ये satisfy करती थी, तो we picked them as classes. अच्छा, again अब ये मैंने आपको कहा है कि जो हमारी स्टेट डायग्राम थी वी कैन मॉडल दैट इन द सीक्वेंस डायग्राम, और सीक्वेंस डायग्राम के अंदर मॉडल करने को हमें उसको फायदा क्या होगा कि वी विल सी कि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांजिशन कर रहा है तो दैट इज
is also interacting with other classes. और वो interaction कैसे है? We try to identify that through sequence diagrams. अच्छा जी, अब हो क्या रहा है, आपका सिस्टम यहाँ पे रेडी स्टेट के अंदर है, ठीक है, और होम ओनर इज द वन बेसिकली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग और इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, ठीक है. जिस तरह होम ओनर ने पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है. अब ये जो पासवर्ड एंटर किया, दिस इज बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट है होम ओनर जिसने ये पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है. जब पासवर्ड एंटर हो गया, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अपने पासवर्ड को कंट्रोल. अब ये जितने भी ये आप देख रहे हैं, अब ये हमने सारे जो स्टेट्स थी वो हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ए बी सी और डी, ये सारी कंट्रोल पैनल की 4 स्टेट्स थी जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे भी देखी हैं, ठीक है. तो वो सारी स्टेट्स को हम कहते हैं कि जी ये सारे फंक्शंस आएंगे, ये सारी स्टेट्स जो हैं इस क्लास से बिलोंग करती हैं, ठीक है. तो वो हमने जो फंक्शन जिस एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं उनको हमने उसके नीचे लिख दिया. जिस तरह जितने भी कंट्रोल पैनल के फंक्शन दे आर ऑल रिटन इन दिस. दे रिप्रेजेंट कि दिस ऑब्जेक्ट कैन डू ऑल दीज पॉसिबल थिंग्स, यानी कि एक कंट्रोल पैनल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन 4 कामों को कर सकता है. इट कैन रीड, इट कैन कंपेयर, इट कैन लॉक द सिस्टम और इट कैन लेट द यूजर टू सिलेक्ट अनदर फंक्शनैलिटी. अच्छा जी, वंस द पासवर्ड इज एंटर्ड, तो सेकंड काम आपका क्या था, कंपेयरिंग. अब कंपेयरिंग के अंदर क्या हो रहा है कि कंपेयरिंग, क्योंकि कंट्रोल पैनल इज जस्ट अ डिवाइस जो कि आपको इंटरेक्ट करने दे रहा है. कंट्रोल पैनल के पास खुद से डाटा सेव नहीं है, ठीक है. कंट्रोल पैनल हैज टू एक्सेस योर सिस्टम और वट एवर योर क्लास है, जहां पे वो अपने उस पासवर्ड को कंपेयर करेगा. तो अब अगर आप ये देखें कि एक सिस्टम की क्लास बनी हुई है जो कि बेसिकली कंपेयरिंग जब इसने करनी है कंट्रोल पैनल ने, तो इट बेसिकली गोज टू दिस क्लास और इस क्लास से वो कह रहा है कि जी मुझे ये पासवर्ड कंपेयर करके दो. ओके, यानी कि जो कंपेयरिंग वाला काम है वो कंट्रोल पैनल खुद नहीं कर रहा, ठीक है. कंट्रोल पैनल हैज shifted this responsibility to the system class. This is actually the beauty of having different classes in your system, that you share responsibilities between different classes. यानी कि सारा काम हम एक ही क्लास से नहीं करा रहे. Okay, so when we actually comparing, तो we actually send a request to the system class और हम उसे कहते हैं जी पासवर्ड कंपेयर करके दो, ठीक. And depending on if the password is correct or incorrect, a result is passed back to the control panel class, ठीक है. ये देखेंगे, ये जो error है, this represents the result that is coming back from the system class. And if the password is correct, ठीक है, अगेन कंपेयरिंग के अंदर ही हमने देखा था कि if the password is correct, then another जो आपकी स्टेट की ट्रांजिशन होगी that would be different, ठीक है. तो once the password is correct, तो it is basically moving, वो जो आपके जितने भी सेंसर्स थे उनको एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट आपने भेज दी. फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू एक्टिवेट योर सिस्टम और टर्न ऑन योर सिस्टम, तो if the password is correct, तो you are saying कि you want to activate your sensor or deactivate your sensor, whatever function you try to select. लेकिन this can only happen once the system authenticates that the password that you entered was correct or not. Okay जी, and ये जो आप ये वाला एरो अगर आप देखें स्लाइड के ऊपर, तो ये एरो आपको यही शो कर रहा है कि यहाँ पे सिस्टम ने आपके पासवर्ड को कंपेयर किया और सिस्टम ने कहा जी पासवर्ड करेक्ट था. देन यू मूव टू, आपने अगली आपने एक फंक्शन सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर आपने अपने सेंसर्स को एक्टिवेट कर दिया. तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम क्लास एंड द सेंसर क्लास. अच्छा, ये तो पासवर्ड करेक्ट वाला केस था. नाउ इफ द पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, लेट्स से, तो आप ये देखें कंपेयरिंग से लॉक की स्टेट के अंदर आ गए, ठीक है. और इसी तरह जब आपकी लॉक की स्टेट खत्म हो गई है, तो ये जो ए दिखा रहा है ये बेसिकली दिखा रहा है कि जब आपका वो टाइम जिससे हमने डिस्कस किया था स्टेट डायग्राम के अंदर कि आपने एक टाइमर रखा हुआ है कि आधे घंटे तक मेरे सिस्टम को लॉक कर दो, ठीक है. लेकिन जैसे ही वो आधा घंटा पूरा हो जाता है तो आपका सिस्टम दोबारा रीडिंग स्टेट में आ जाता है. तो ये ए यहाँ पे शो करने का मतलब ये है कि वी डिडंट मेक एन एरो गोइंग दिस वे, कि आपका सिस्टम अब दोबारा ए स्टेट के अंदर आ गया. इट कैन अगेन स्टार्ट एक्सेप्टिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर. ओके जी, और इसी तरह जब आपका ये सिस्टम सक्सेसफुल था और आपके सेंसर्स एक्टिवेट हो गए, तो एक्टिवेशन का सेंसर क्लास ने दोबारा से कंट्रोल पैनल क्लास को बताया कि जी आपकी जो एक्टिवेशन थी वो सक्सेसफुल हो गई है. और जब तो फिर कंट्रोल पैनल क्या करेगी, कंट्रोल पैनल वही चीज़ होम ओनर को बताएगी कि होम ओनर को ये मैसेज आ जाएगा कंट्रोल पैनल के ऊपर के डिस्प्ले के ऊपर कि जो एक्टिवेशन आपने सेलेक्ट की थी दैट इज बीइंग सक्सेसफुल. सो अगर हम इस सीक्वेंस डायग्राम को देखें, and you need to keep in mind the state diagram that we just made for the control panel class, ठीक है. तो what a sequence diagram does is, ये basically किसी भी यूजर का आपके सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन है उसको देखती है and then it tries to link कि ये इंफॉर्मेशन एक यूजर ने जब एंटर कर दी है तो ये डिफरेंट क्लासेस के दरमियान, डिफरेंट क्लासेस को ये कैसे, डिफरेंट क्लासेस के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है. जिस तरह हमने देखा
कि होम ओनर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसने इनपुट एंटर की, ठीक है, इनपुट को प्रोसेस कर रही है कंट्रोल पैनल क्लास, ठीक है, या इनपुट को रीड कर रही है कंट्रोल पैनल क्लास, लेकिन जो इनपुट है उसकी जब हमने कंपेयर करना है कि जो पिन नंबर है वो सही है या गलत है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल पैनल क्लास। ये वाला काम कौन सी क्लास कर रही है? सिस्टम क्लास कर रही है। सो इस काम को पूरा करने के लिए वी नीड इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल क्लासेस। वंस वी रेड दैट इनपुट वी सेंट इट टू द सिस्टम क्लास, सिस्टम क्लास ने उस इनपुट को कंपेयर किया, इफ द इनपुट वाज करेक्ट तो आपके सेंसर क्लास को चला गया और सेंसर क्लास को आपने कह दिया कि जी सेंसर्स को एक्टिवेट कर दो। अगर तो सेंसर एक्टिवेट हो गए, इट वाज सक्सेसफुल, तो इन इवेंट आपका ये देखें एक मैसेज वापस आ रहा है जो कि बेसिकली बता रहा है कि जो आपकी कंट्रोल पैनल क्लास को बता रहा है कि जी आपने जो काम कहा था वो सक्सेसफुल हो गया, एंड टेल इट टू द होम ओनर कि जी ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आप इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करते हैं? यू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, ठीक है, जनरेटेड बाय, जो कि आपके किसी इवेंट की वजह से जनरेट हुआ है, जो उसका पूरा काम का सीक्वेंस बनता है, आपने वो सारा इसके अंदर दिखा दिया। तो वी दिस नॉट ओनली शोज वन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस डायग्राम के अंदर मल्टीपल पाथ्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। जिस तरह एक पाथ है कि पासवर्ड इनकरेक्ट आता गया आपका सिस्टम लॉक हो गया, दैट इज वन पाथ। दूसरा पाथ इसके अंदर क्या है कि पासवर्ड सही हुआ, तो इट इज एक्चुअली द सेम रिप्रेजेंटेशन जो हमने स्टेट के अंदर दिखाई थी, लेकिन स्टेट के अंदर हम सिर्फ एक क्लास की डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जंप कर रहे थे, वेयर एज इन अ सीक्वेंस डायग्राम हम एक क्लास के डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान तो जंप कर रहे हैं, लेकिन उन स्टेट्स के अंदर अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरी क्लासेस की जरूरत है तो वी ऑल्सो शो देम इन अ सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। जिस तरह कंपेयरिंग का काम कंट्रोल पैनल की क्लास खुद से नहीं कर रही, दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम क्लास, तो हमने इसके अंदर सिस्टम क्लास को भी शो किया कि हाउ द सिस्टम क्लास is helpful in context of the whole overall solution, ठीक है, कि overall solution में system class कहाँ पे आ रही है, ठीक है। So this is the purpose of sequence diagram. Again, ये जो पिछली वाली diagram थी, you need to keep in mind कि जो आपकी state diagram है, state diagram represents different states of a class और how you transition between those different states, whereas the sequence diagram जो हमने बनाई है, ये क्या करती है, ना सिर्फ एक क्लास के डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान ये शो करती है कि कैसे मूव करेंगे, लेकिन उन इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए दे नीड टू कोलैबोरेट विद अदर क्लासेस, तो वी आल्सो रिकॉर्ड दैट इन द सीक्वेंस डायग्राम। ओके जी, सो दिस वाज द एलैबोरेशन फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब अगर आप पिछला इंसेप्शन और एलिसिटेशन फेज को जहन में लाएं तो हमने कहा था कि इंसेप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी आस्क बेसिकली अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, और ये सेट ऑफ क्वेश्चंस का हमने कहा था कि एक मकसद ये होता है कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चंस डिफरेंट नौइयत के होते हैं। पहले क्वेश्चन होते हैं कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द कस्टमर और की स्टेक होल्डर इन द कंपनी, यानी कि कंपनी में फॉर एग्जांपल 300 लोग हैं, तो 300 के 300 लोग आपको जो बातें बताएंगे वो आप अपने सोल्यूशन में नहीं डालेंगे, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द की पीपल जिनकी रिक्वायरमेंट्स को आपने अपने सिस्टम के अंदर शामिल करना है, ठीक है। तो इंसेप्शन के अंदर वी बेसिकली आज सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं जब आपके प्रोडक्ट ओरिएंटेड या आप प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं उस कंपनी के, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उनका एचआर की अटेंडेंस का क्या प्रोसेस है, उनका सैलरीज देने का क्या प्रोसेस है, इफ इट्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बनने के क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो दूसरी तरह के क्वेश्चन वो होते हैं। थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे आपके जिसके अंदर आप ये कस्टमर से पूछते थे कि यार आई हैव आस्क्ड यू सो मेनी क्वेश्चंस, इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू ऐड, यानी कि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ समरी और यू समराइज व्हाट यू हैव डन इन इंसेप्शन। एक्सक्यूज मी। सेकंड स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाज एलिसिटेशन, ठीक है जी। दिस वाज द फर्स्ट स्टेज जो हमने पढ़ी थी। द सेकंड स्टेज वाज एलिसिटेशन। एलिसिटेशन के अंदर हमने क्या कहा था कि हम यूजर से उगलवाने की कोशिश करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, और इसके हमने दो मेथड्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन वाज कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है जी। और जो हमारा दूसरा मेथड हमने इसके अंदर पढ़ा था वो क्या था, QFD। और इन दोनों का मकसद क्या था कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। और एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि रिक्वायरमेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रिक्वायरमेंट्स क्योंकि हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, उर्दू के अंदर, किसी भी एक लैंग्वेज में लिखते हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी। हम रिक्वायरमेंट्स को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स क्वांटिफाइबल होंगी, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को मेजर करना बड़ा आसान होता है। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि जी इस पेन का डायमीटर मैंने 2 इंच रखना है, लेट्स से, तो दिस इज वेरी इजी टू डू, यानी कि आप जब पेन बनेगा आप कंपेयर कर लेंगे 2 इंच है कि नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं जी आई वांट द डायमीटर ऑफ द पेन टू बी राइट साइज, ठीक है, तो दिस इज अ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। जब आपने राइट साइज कह दिया तो राइट साइज की डेफिनेशन हो सकता है मेरे लिए कुछ और हो,
और हर ऑडियंस पे जितने लोग हैं हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है राइट साइज की डेफिनेशन. सो व्हेन वी क्वांटिफाई समथिंग तो इट मेक्स इट ईजियर टू मेजर इट. ठीक है, जब आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हमने एलिसिटेशन किया था. द थर्ड फेज दैट वी हैव कवर्ड व्हिच वाज अ लेंथियर फेज, इट वाज एलैबोरेशन. एलैबोरेशन को हमने कहा था कि दिस इज द फर्स्ट, ये हमारे सिस्टम की पहली टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होती है. टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर हमने क्यों कहा था, क्योंकि इसके अंदर हम 4 तरह की मॉडलिंग करते हैं. द फर्स्ट काइंड ऑफ मॉडलिंग दैट वी डू इज इट्स कॉल्ड सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. ठीक है जी, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूजर का अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, दिस इज द सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. जो दूसरी तरह की हमने मॉडलिंग पढ़ी थी वो थी फ्लो बेस्ड मॉडलिंग. फ्लो बेस्ड मॉडलिंग क्या होती है, इन द फ्लो बेस्ड मॉडलिंग हम अपने सिस्टम के अंदर से डाटा जो आ रहा होता है और जो डाटा जा रहा होता है और डाटा किस तरह प्रोसेस होता है, वी ट्राई टू रिकॉर्ड दैट. ठीक है, वी ट्राई टू रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ डाटा इन एंड आउट ऑफ आवर सिस्टम एंड हाउ इट इज प्रोसेस्ड विद इन आवर सिस्टम. तो फ्लो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हम ये मॉडल करते हैं. तीसरी जो हमारी चीज होती है उसको हम कहते हैं क्लास बेस्ड मॉडलिंग. ठीक है, क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अगेन अपने सिस्टम को पार्टीशन करते हैं इन डिफरेंट क्लासेस और हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि क्लासेस आपस में किस तरह कोलैबोरेट करती हैं, जो हमने CRC कार्ड्स पढ़े थे. ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग दैट वी हैव कवर्ड टुडे इज बिहेवियरल मॉडलिंग. बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर हम अपने सिस्टम का बिहेवियर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल वी डू, जो हम इसके अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, नंबर 1 द स्टेट डायग्राम्स एंड नंबर 2 इज द सीक्वेंस डायग्राम. तो स्टेट डायग्राम के अंदर हम एक क्लास के डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जो जंप्स हो रही होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह उन स्टेट्स में आप ट्रांजिशन करते हैं. एंड इन द सीक्वेंस डायग्राम हम उसी स्टेट डायग्राम को एक क्लास के अंदर भी डालते हैं और उसका इंटरेक्शन बाकी क्लासेस के साथ भी रिकॉर्ड करते हैं. बट देयर इज वन थिंग इन कॉमन, ये इलैबोरेशन फेज की आप जितनी भी तरह की मॉडलिंग पढ़े, हम अपने सिस्टम को पार्टीशन कर रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि ये एलिसिटेशन फेज के ऊपर भी हमारा सिस्टम पूरा एक सोल्यूशन को हम एलिसिटेशन के फेज के ऊपर भी जब हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो इतनी क्लियर पार्टीशनिंग नहीं होती. वी हैव सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, लेट्स से 200 रिक्वायरमेंट्स आ गई. ठीक है, एलैबोरेशन फेज वो पहला फेज होता है कि हम अपने सिस्टम को पार्टीशन करते हैं. ठीक है, जिस तरह अगर आप यूज केसेस को देखें, यूज केस के अंदर भी पार्टीशन है. इन द यूज केसेस आवर पार्टीशन इज यूजर बेस्ड और एक्टर बेस्ड. हम एक्टर की बेसिस के ऊपर अपने सिस्टम का पार्टीशन कर रहे हैं. ठीक है, इन फ्लो बेस्ड मॉडलिंग वी आर ट्राइंग टू पार्टीशन आवर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द डाटा, कि किसी एक डाटा को हमारा सिस्टम कैसे प्रोसेस करेगा उसकी बेस के ऊपर हम अपने सिस्टम को पार्टीशन कर रहे हैं. इन केस ऑफ क्लासेस वी आर ट्राइंग टू पार्टीशन आवर सिस्टम ऑन द बेस ऑफ क्लासेस, कि हम आइडेंटिफाई करें कि जी ये मेन हमारे एक सिस्टम की क्लासेस बन जाएंगी और इस तरह हमारे सिस्टम की पार्टीशनिंग हो जाएगी. सिमिलरली इन बिहेवियरल मॉडलिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विद इन ईच क्लास जो इवेंट्स जनरेट होंगे उसकी बेस के ऊपर हमारे सिस्टम की डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनकी क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स बन सकती हैं. ठीक है, तो द बेसिक गोल इज दैट वी ट्राई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ the requirements that we have gathered in the elaboration phase. और ये elaboration का शायद जो wordly meaning है वो भी यही है. जो literal meaning elaboration का क्या है कि you try to elaborate on something that you have, यानी कि आप उसकी वजाहत कर रहे हैं. ठीक है, या उसको clarify कर रहे हैं. तो elicitation के अंदर हम जो भी requirements कहते करते हैं we try to elaborate them. Okay जी, so we have covered the first 3 phases of requirement engineering. Number 1 was inception, number 2 was elicitation, and number 3 was elaboration. The fourth phase of requirement engineering is negotiation. Now as the name suggests, negotiation के अंदर क्या आपके जहन में हम क्या करेंगे. तो what we do in negotiation, क्योंकि requirement is a piece of document जो कि हमारे पास proof होता है कि this is what the customer asked for. ठीक है, तो और रिक्वायरमेंट्स ही वो चीज़ होती है जो कि आपको बताती है एज ए सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी कि आपने ये चीज़ें बनानी है. ठीक है, वंस यू हैव रिटन द रिक्वायरमेंट्स, या आपने जब कस्टमर से एलिसिट करवा लिया रिक्वायरमेंट्स एंड यू हैव एलेबोरेटेड ऑन देम, तो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको ये प्रोडक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं करने देंगी. ठीक है, यहाँ आपको पता लग जाता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की ऐसी हैं जो कि कंट्राडिक्टिंग है, कि एक फीचर उनकी वजह से इफेक्ट होता है और दूसरा फीचर उसकी वजह से वन फीचर इज बैडली इफेक्टेड और अदर, अगर एक काम आप करना चाहेंगे दूसरा काम बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो यू आइडेंटिफाई कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज वेल. ठीक है,
तो what you have to do is you have to then negotiate with the customer. ठीक है, ठीक है. तो in this phase we will see that how can we actually negotiate with the customer, क्योंकि one thing that you need to keep in mind that the customer is always right. ठीक है, क्योंकि he is the one who has to actually pay you something. So you have to negotiate with the customer in a reasonable way that he understands your point and you make him realize that you're important, लेकिन he needs to understand what you're trying to say. ठीक है, क्योंकि आपको सिस्टम के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कौन सा काम आप करेंगे तो उसकी वजह से शायद प्रोजेक्ट आपका टाइम पे कंप्लीट ना हो या कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स के केस में आपको निगोशिएट करना पड़ सकता है. सो लेट्स सी निगोशिएशन फेज के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. अच्छा जी, एज आई सेड, ये अगर हम पहली लाइन को देखें कि निगोशिएशन के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, ही बेसिकली ट्राइज टू रिकनसाइल द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द व्हाट द कस्टमर वांट्स. ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट है वो क्या बताता है, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट यही बताता है कि कस्टमर को क्या चाहिए. ठीक है, और व्हाट कैन बी अचीव्ड गिवन लिमिटेड बिजनेस रिसोर्सेज. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर आपको पैसे ही देने को तैयार नहीं है, कस्टमर कहते हैं जी आई कैन पे यू मैक्सिमम 20 लाख रुपीज एंड आई वांट एन ईआरपी सिस्टम जिसके अंदर आप एचआर भी डाल दें, फाइनेंस भी डाल दें, इन्वेंट्री भी डाल दें, प्रोडक्शन भी डाल दें. ठीक है, he is basically asking for a complete solution which might cost 80-90 lakhs और वो आपसे कह रहे हैं जी मैं आपको 20 लाख दूंगा. ठीक है, now with the limited resources it is not possible for you to actually offer him that product क्योंकि this is not beneficial for you. ठीक है, तो you need to tell the customer कि जी what you want cannot be delivered with those limited resources. So you need to actually tell him कि जी this is how we'll go about it. ठीक है, सेकेंड काम जो आप निगोशिएशन के करते हैं, यू ट्राई टू रैंक द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट्स किस किस से दी है. यू हैव गॉट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स, द सॉफ्टवेयर यूजर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स ने आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, यू ट्राई टू रैंक देम. ठीक, रिक्वायरमेंट्स को रैंक करने का क्या मतलब होता है, जिस तरह हम अभी देखेंगे जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं तो वी ट्राई टू, हम अपने सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम शायद पहले करना चाहेंगे. ठीक है, वी विल से कि जी दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू. ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी वांट टू डू. नाउ दैट इज डन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस. आप जो ज्यादा जरूरी काम होते हैं यू ट्राई टू डू देम फर्स्ट. एंड फॉर एग्जांपल GUI रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, यानी कि यू वांट टू मेक योर प्रोडक्ट फैंसी, तो यू कैन लीव दोज थिंग्स फॉर लेटर, लेकिन द बेसिक फंक्शनलिटी दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड फर्स्ट. तो यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द की रिक्वायरमेंट्स और आप उनकी बेसिस के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स को रैंक कर लेते हैं. ठीक है, then the third thing that you need to do in negotiation phase or before you actually go to negotiate with the customer is that you need to identify the risks involved with each requirement. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपसे कहता है जी यू आर अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है, हम सॉफ्टवेयर की जरा दूसरी तरफ उठ के जाते हैं ताकि मैं इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं. एंड द कस्टमर वांट्स कि जी जो गाड़ी का इंजन आप बनाए ना, इट शुड रन वेरी फास्ट. ठीक है, Now, the engine can run very fast, लेकिन उसके risks भी उसके अंदर बहुत से इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, the biggest risk can be कि आपकी जो CO2 की emission है वो शायद बहुत ज़्यादा हो जाए. ठीक है, और गवर्नमेंट ने emission legislation लगाई हुई है कि CO2 एक certain percentage से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, now that is one of the risk associated with that. ठीक है, तो इसी तरह आप प्रोडक्ट के अंदर भी रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको कस्टमर ने बताई हुई है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच रिक्वायरमेंट एंड यू नीड टू एनालाइज देम. ठीक है, एनालाइज करने का क्या फायदा होगा कि व्हेन यू गो टू द कस्टमर तो यू वुड नो कि जी आपको एक ही चीज पता होगी कि इस रिक्वायरमेंट को करने से आपका सिस्टम इस तरह से इफेक्ट होगा. तो यू कैन मेक, आप कस्टमर को अपना पॉइंट कन्वे करने में इट विल बी वेरी इजी फॉर यू देन. ठीक है जी. और नंबर 4 दैट यू नीड टू डू इज रफ गेसेस ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट आर मेड एंड यूज टू असेस द इंपैक्ट ऑफ ईच रिक्वायरमेंट ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम. ठीक है जी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास थी, यू हैव R1, R2, R3 और 4. लेट्स से इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, आपके पास 4 रिक्वायरमेंट है. ठीक है, आपने R1 के भी रिस्क निकाल दिए. ठीक है, आपने इन सब की रिस्क असेसमेंट कर ली. ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि रिक्वायरमेंट R1 से आपके सिस्टम को क्या इफेक्ट हो सकता है, R2 से क्या एडवर्स इफेक्ट्स है, R3, R4 से क्या है. देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू ट्राई टू एस्टिमेट कि R1 को करने में आपको कितना टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल यू से इसको करने में मुझे 2 मंथ्स लग जाएंगे. ठीक है, और आप इसी तरह सारी रिक्वायरमेंट्स की टाइम एस्टिमेशन कर लेते हैं. ठीक है, टाइम और एफर्ट एस्टिमेशन कर लेते हैं. इसका क्या फायदा होगा कि फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट 1 साल में मांगी है, लेकिन जब आप इस तरह की एस्टिमेशन करते हैं आपको पता लगता है कि यार ये सारा काम करने में तो मुझे 1.5 साल लग जाएगा. ठीक है, तो देन यू आर इन अ गुड पोजीशन टू नेगोशिएट विद द कस्टमर कि आइदर यू रिड्यूस द वर्क और यू इंक्रीज द टाइम. ठीक है, और यूजिंग एन इंटरैक्टिव अप्रोच, रिक्वायरमेंट्स आर एलिमिनेटेड, कंबाइंड और मॉडिफाइड
और इसके अंदर इन द एंड आप करते क्या है कि वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज कि आपने कन्फ्लिक्ट्स को रिकनसाइल किया, दूसरा काम आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया, तीसरा काम आपने क्या किया, हर रिक्वायरमेंट के रिस्क आइडेंटिफाई किए, चौथा काम आपने क्या किया, देयर आर 4 थिंग्स दैट यू हैव डन, चौथा काम आपने क्या किया कि आपने हर रिक्वायरमेंट से एसोसिएटेड उसका टाइम और उसकी एफर्ट आपने निकाल ली, ठीक है। नाउ इन द फाइनल थिंग व्हाट वी डू इज यू बेसिकली इन एन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट यू सेट विद द कस्टमर, और आप कस्टमर से मिलकर कहते हैं कि भाई ये हमने रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया है और ये हमारे रिक्वायरमेंट से रिस्क निकले और इतनी हमारी एफर्ट है और ये हमारे अब प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। और आप कस्टमर से कहते हैं कि जी ये वाले काम हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते। यू बेसिकली सिट इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू ट्राई टू टेल द कस्टमर योर प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट ओपिनियन कि जी ये काम इस तरह से करेंगे तो ये मसले होंगे, ये काम इस तरह से करेंगे तो ये मसले होंगे, एंड देन यू कम अप विद सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो कि आफ्टर नेगोशिएशन जो होती हैं जिनके अंदर आप हर तरह की चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। कस्टमर इज सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है, और जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स, कॉस्ट कंस्ट्रेंट, एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन फेज कि यू, क्योंकि आपने इन दी एंड कस्टमर ने जब आपसे प्रोडक्ट लेनी है तो उसने इन रिक्वायरमेंट के साथ उस प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है, और अगर आप रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उनका एनालिसिस करके कस्टमर से नेगोशिएट नहीं करते तो यू विल बी इन अ बैड पोजीशन। क्योंकि फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हो सकता है आपसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मांग ली हों और आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, यू डिडंट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, यू डिडंट रैंक देम, यू डिडंट इवेलुएट देम, और आपने प्रोडक्ट बनानी शुरू कर दी। इन द एंड यू रियलाइज कि जी ये तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर मैं एक काम करूंगा दूसरा खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई दिस फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम शुरू करने से पहले यू नीड टू नेगोशिएट प्रॉपर्ली विद द कस्टमर कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। ओके ओके जी, सो नेगोशिएशन इज बेसिकली नॉट अ साइंस, ठीक है, इट्स एन आर्ट, ठीक है। व्हाई यू से इट्स एन आर्ट कि first of all we need to realize that when we go to negotiate it's not a competition, ठीक है। we are not in a competition with the customer को basically हमने realize करवाना है कि ये जो हम आपको negotiate भी करने जा रहे हैं this is for your benefit, ठीक है, और this is अगर हम ये इस तरह से काम नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो you need to basically get this across to the customer कि we are not trying to compete, whatever we are suggesting is for your good, ठीक है। और देन अ स्ट्रेटजी इज मैप्ड आउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपना काम अगर कस्टमर से कम भी कराना है तो यू नीड टू कम अप विद द स्ट्रेटजी वेयर द कस्टमर एक्चुअली डजंट रियलाइज इट, ठीक है। आप उसको पहले यू टेल हिम द गुड थिंग्स कि दिस विल बी इन अ सॉल्यूशन, दैट विल बी इन अ सॉल्यूशन, बट यू बिकॉज वी आर डूइंग दिस और बिकॉज वी हैव दिस टाइम कंस्ट्रेंट वी वोंट डू दिस, ठीक है। तो यू नीड टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी, एंड देन व्हेनेवर this is something very important that whenever you are in a conversation and you want the other person who is speaking, you want him to feel important, then you need to listen very actively, okay? You need to look very attentive because if you're not, then this is an insult to the speaker, okay? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि whenever you are in a meeting with the customer, listen to him very actively कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, so that he knows कि the whatever he is saying that is very important for you, ठीक है। And you need to understand और focus on the other party's interest, ठीक है। हो सकता है कि आप एनालिसिस करके गए हो और आपके नज़दीक की रिक्वायरमेंट हो ही ना सकती, लेकिन when you meet with a customer, कस्टमर कहता है यार इसके बगैर तो मेरा काम भी नहीं हो सकता, तो आपको उसके इंटरेस्ट को भी ज़हन में रखना है। देन मे बी यू नीड टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि आप उस काम को कर सकें, ठीक है। और अगेन जिस तरह पहले हमने चीज़ की थी कि दिस इज नॉट अ कंपटीशन, तो निगोशिएशन को डोंट मेक इट पर्सनल, ठीक है, कि दिस इज नॉट योर इशू विद अदर गाय जो कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आया हुआ है, ये उसके और आपके दरमियान भी कोई ना तो कोई मुकाबला है और दिस इज नथिंग टू डू विद यू, दिस इज बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी और ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंपनी और आप एक उनको सोल्यूशन देने जा रहे हैं, तो देयर इज नथिंग पर्सनल गोइंग ऑन हियर, ठीक है। एंड बी क्रिएटिव, ठीक है। Now usually this negotiation phase is handled by very experienced people, ठीक है, और the people who basically can oversee कि एक काम करने से क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे और they can make decisions on the run time, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि कस्टमर हो सकता है आपसे आके कह दे जो काम आपने सोचा था नहीं करना, कस्टमर कह दे यार इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा काम चले, ठीक है। then you need to be creative and come up with a solution right then and there, ठीक है। and final thing is that you need to be ready to commit. फॉर एग्जाम्पल आपसे कस्टमर आपने अब जब निगोशिएट कर भी लिया और कस्टमर ने मान गया सब कुछ करने, तो यू शुड से कि ओके जी दिस इज फाइनल एंड वी विल डू इट, ठीक है। सो निगोशिएशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि दिस इज नॉट अ कंपटीशन, ठीक है। यू बेसिकली हैज टू कीप इन माइंड द अदर पार्टीज इंटरेस्ट विच इन दिस केस इज द कस्टमर, ठीक है।
You need to map out a strategy that how you will actually present it or how you will tell the customer कि जी हम ये वाला काम करने जा रहे हैं, ये वाला काम नहीं करने जा रहे. Then आपको you need to listen very carefully to what the customer is saying, and you need to focus on his interest as well. Or this is not personal, and you need to actually commit at the end कि जी अच्छा हम ये वाला काम करेंगे और ये वाला काम नहीं करेंगे. So we have just discussed the art of negotiation, and as I said, we'll repeat it again, that negotiation is not a science, it's basically an art, and we need to realize that we are not in a competition with the customer when we go for negotiation. Okay, and we need to keep in mind the customer's interest, and at times whatever we analyze or whatever we have decided among our team, that might not happen when we actually meet with the customer. Okay, and customer might say that something he wants is very important or very critical to his business processes. So as a team who goes for negotiation, as a team you should have powers to actually commit to whatever customer wants and to actually accept something from the customer as well. Okay, so this is what as far as we will discuss about negotiation in this lecture. And so this, we're coming towards the end of our lecture, and in this phase or in today's lecture, what we have covered is we finalized this elaboration phase, and within the elaboration phase we covered behavioral modeling. Okay. In behavioral modeling we covered two things. Number one, we covered state diagrams, and number two, we have covered sequence diagrams. Within state diagrams, we saw what we try to do. We basically try to do two things. Number one, we identify the events that may occur, और वो events हम कैसे ढूंढते हैं? We try to go through the use case text and we try to identify the actors interaction with the system. जब भी कोई एक्टर हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, इवेंट इज जनरेटेड. ठीक है, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स और जो आपकी स्टेट डायग्राम्स बनती. एंड द सेकेंड थिंग इज ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ क्लास. हमने ये भी देखा कि जो स्टेट डायग्राम्स आप बनाते हैं, usually for each class there is a state diagram. ठीक है, यानी कि we try to identify कि एक class या एक object है वो किन possible states के अंदर जा सकता है. Then we try to identify the events जो कि उस transition को जो different states के अंदर एक object ने जाना है उसको trigger करता है. And then in the state diagram we basically try to model an overall, एक क्लास के हम सारी स्टेट्स को मॉडल करते हैं और उस इवेंट की बेस के जो भी पॉसिबल ट्रांजिशन होती हैं स्टेट्स के दरमियान में, वी ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम. The second thing that we covered in behavioral modeling, that was sequence diagrams. Sequence diagrams gives more information than state diagrams, क्योंकि state diagram के अंदर तो हम सिर्फ एक क्लास की सारी possible states और उनकी transitions को रिकॉर्ड करते हैं, whereas in the sequence diagram हम ना सिर्फ एक क्लास की possible states और उनकी transitions को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि किसी एक स्टेट के अंदर जब क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ इंटरेक्ट करती है तो वी ऑल्सो रिकॉर्ड दैट इन अ सीक्वेंस डायग्राम. तो इन सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? वी कैन हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हैव मल्टीपल क्लासेस. ठीक है, और वी बेसिकली गेट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस. ठीक है, हमें क्या मिल जाता है जब हम सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं? हमें किसी भी इवेंट की बेसिस के ऊपर क्लासेस के दरमियान इंटरेक्शन का एक पूरा सीक्वेंस मिल जाता है. ठीक है, एंड वी गेट, फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने पिछले केस के अंदर कंट्रोल पैनल की क्लास बनाई थी स्टेट डायग्राम के अंदर इन दिस लेक्चर, एंड देन वी मॉडल्ड द सेम सेट ऑफ जो इवेंट्स थे उसी को हमने मॉडल किया सीक्वेंस डायग्राम के अंदर. तो हुआ क्या कि होम ओनर की क्लास ने बेसिकली एक इवेंट जनरेट किया, इट वेंट टू द कंट्रोल पैनल क्लास. ठीक है, और कंट्रोल पैनल की क्लास ने पहले पासवर्ड रीड किया, बट जब कंपेयर करना था then the responsibility went to the system class, and the system class basically compared the password that the user has entered, and if the password was correct then the control
went to the sensor class जहाँ पे sensors activate हुए, and once the activation was successful, तो a message was passed back to the control panel class, and finally a message was displayed to the homeowner. So basically in the sequence diagram it gives you more information than the state diagram. So this was elaboration. Elaboration की phase हमारी यहाँ पे खत्म हो गई थी. It was one of the most detailed phases of requirement engineering. Then in this lecture what we have covered is negotiation. ठीक है? Because I've told you कि when the customer would start telling you requirements, they might tell you many things, ठीक है? And they would tell you all the possible things that can happen, or or whatever they think they want in the solution, ठीक है? लेकिन as a software engineer, and in keeping in mind the interests of your company, you basically has to figure out कि कौन सी चीज़ें आपने कस्टमर को करके देनी है और कौन सी नहीं करके देनी, ठीक है? Okay, once you go in the practical life, you will realize, and once you start working for a company, and if you get a chance to go and get the requirements from the customer, you will realize that at times customer would tell you things which are not possible to do, okay? And by not possible to do, I mean that, for example, within the budget that has been set for this project, it is not possible for you as a company to actually do those things, okay? Or it is conflicting with other requirements. So ये जो negotiation की phase है, it basically lets you as a company tell customer कि जी ये वाले काम हम नहीं कर सकते और ये वाले काम हम कर सकते हैं. So this is very important. और negotiation के हमने अंदर देखा था कि negotiation के अंदर basically we try to do four things. जो सबसे पहला काम हम negotiation के अंदर करते हैं, ठीक है, वो basically as a software engineer we try to reconcile conflicts, ठीक है, क्योंकि हमें कस्टमर को ये बताना होता है कि जी जो आप मांग रहे हैं, ठीक है, वो इन रिसोर्सेज के अंदर पॉसिबल ही नहीं हो सके, ठीक है? तो वी बेसिकली रिकंसाइल द कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. जो दूसरा काम आप नेगोशिएशन के अंदर करते हैं वो आपका होता है कि आप यू बेसिकली एनालाइज ईच रिक्वायरमेंट. आप हर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, उसके रिस्क्स को इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि आपको हर रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि इसको करते वक्त मेरे सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है? ना सिर्फ मेरे सिस्टम पे बल्कि एज अ कंपनी, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डूइंग दिस थिंग, ठीक है? जो तीसरा काम आप करते हैं, यू ट्राई टू रैंक द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? आप रिक्वायरमेंट्स को रैंक करते हैं उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से. प्रायोरिटी कैन बी गिवन बाय द कस्टमर, इट्स बेसिकली गिवन बाय एनी स्टेक होल्डर, ठीक है? You try to identify the key requirements जिनके बगैर शायद सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता, क्योंकि एज अ कंपनी और एज अ डेवलपर यू वांट टू डू दोज थिंग्स फर्स्ट जो कि सोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ विच आर द की थिंग्स और विच आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सिस्टम. तो यू आइडेंटिफाई एंड रैंक द रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन दोज की फंक्शनैलिटीज. और जो चौथा काम आप करते हैं, दैट इज यू असाइन और एस्टिमेट resource requirement for each requirement actually. So आप हर requirement के लिए estimate करते हैं कि इस काम को करने के लिए आपको कितने resources चाहिए और आपको कितना time लगेगा. तो basically there are 4 things. आप customer के साथ reconcile करते हैं conflicts को, आप अपनी हर requirement को analyze करते हैं, अपनी requirements को rank करते हैं, और आप हर रिक्वायरमेंट को बेसिकली जब एनालाइज कर रहे थे तो आप उसको रिसोर्स एस्टिमेशन और टाइम एस्टिमेट भी करते हैं कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा. व्हेन यू डू दीज थिंग्स, तो यू बिकम इन अ पोजीशन टू बेटर एक्सप्लेन इट टू द कस्टमर कि व्हाई अ सर्टेन थिंग इज नॉट पॉसिबल और व्हाई समथिंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन, ठीक है? और finally what we saw in negotiation, which is something very important and you need to keep in mind कि when you go with the customer, so you need to realize this is not a competition, ठीक है? For example, जब आप दो बंदे आपस में compete कर रहे होते हैं, then they can get in a fight as well, ठीक है? And then you can do all possible things जो जिसमें आप उसको हराने की कोशिश करते हैं. Whereas in this case, you want a win-win situation, ठीक है? You want the customer to be satisfied and you want to come back to your company as successful, or so you want a win-win situation for everybody, ठीक है? So you need to give importance to customers' opinion when you go for negotiation, yet you have to tell the customer what things are possible and what things cannot be included in the solution, ठीक है जी? So we covered elaboration, we covered negotiation. So by the end of today's lecture, we have covered inception, elicitation, elaboration and negotiation phases of requirement engineering. Inshallah, in the next lecture, we will go through specification, that how we specify requirements, we will cover how we validate requirements, and we will also see
what is requirement management? Once we have written, then what do we mean by requirement management? And we will try to summarize the overall topic of requirement engineering. So, Assalamu alaikum and thank you.